Hello, hi, welcome to the India's largest learning platform, which is an academy. Merry Christmas, everybody. This is an academy's channel, an academy 8th. Let's crack CBSE 8th. Correct? So, yes, we have already discussed land and soil. In today's class, we will be discussing on water, natural vegetation, and wildlife resources. So, this is going to be our main point here that we need to know that how water has been exploited or how we can conserve water, what is natural vegetation, how we can protect them, and what are the benefits of having wildlife. Okay, so before going towards this, let me introduce myself. This is Neha Kumari. I have done graduation, post graduation from Nehu University, Shillong. I have 1 year of experience in reputed school. I have taught class 11th and 12th. The subjects that I was teaching there was accountancy and business studies. Currently, I am pursuing B.Ed because I have a passion for learning and teaching. So as a result, I have joined an academy because it gives me a pleasure, a platform to interact with you, to learn and to teach. Correct? So yes, an academy is a platform that is giving you access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So yes, we are giving you the best educators that we have, the India's best educators who have well specialized knowledge about their subject, well versed in their subject, so they know what they are talking about. And apart from that, we take daily life classes. Here you are going to experience, while joining us, we are going to experience the best from the best. Correct? We have, here you are getting to prepare with India's top educators who are having teaching experience of not less than 5 years or more than that. Correct? So we have Ma'am Saini, we have Sir Kunal, Ma'am Sayoni, Vandana ma'am, Vinay sir, Diksha ma'am, like that. So they are very, very qualified. They have also cleared some exams, respective exams in which they were pursuing. So yes, they are very, very trained. Correct. So in the plus, what are you going to get? Plus, first point you are going to get is India's best educators, where you are going to learn from the best of the country. है ना? अब जब आप बेस्ट से पढ़ते हो तो आप भी बेस्ट हो जाते हो. करेक्ट. सो अगेन वी गिव यू इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस जहाँ पे आप अपने एजुकेटर के साथ कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इंटरैक्ट कर सकते हो. यू आर फ्री टू आस्क देम क्वेश्चंस, engage in discussions, and so forth and so forth. Correct? Then live tests and quizzes. We organize live tests and quizzes where you are learning your subjects through quizzes, through fun. So this is basically giving you a plus a benefit of joining the Unacademy. Correct? Then we also have a creative corner where you are going to learn something new, something apart from your school syllabus. So this creative corner is basically giving you a school syllabus beyond beyond school syllabus, sorry, beyond school syllabus. Suppose your subjects that you have are your math, science, English, Hindi, social studies. So apart from that, if you have any kind of interest in some other line of studies, then you can also go for it. Suppose you want to learn about business administration or some more histories about the federalism, nationalism, like that. So you can also go for it in those subjects. Here you can also learn about robotics, financial literacy, and so forth and so forth. Correct? Then entertainers corner, we also have a entertainers corner that is just my that just have my heart, because this entertainers corner is giving you some extra benefit that you cannot afford outside. मतलब, when I say afford, in the sense because we don't have time to go out. करेक्ट. इतने हम लाइफ में बिजी हैं, इतने हम और बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक स्पेशली वी कैन नॉट गो आउट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो आउट सो सुन. जब मन किया तब उठ के चले गए, ऐसा नहीं हो सकता. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेफ्टी एज वेल. सो ये एंटरटेनर्स कॉर्नर इज बेसिकली गिविंग यू an opportunity to learn new things like your filmmaking, then your magic tricks, then music, arts for that aspect. Okay.
Then we also have an orator corner where you are learning how to debate, how to go for public speaking, what you should say, how you should say, how you should present yourself. Effective communication is definitely there. Book lovers corner is also available. Sorry, give me a minute. I'm talking for a longer period. Maybe I'm just slipping a lot. So book lovers corner is a corner where you are going to learn about how to do blogging, how to do storytelling and many more. ठीक है, बुक क्लब भी है जहाँ पे आप अपने बुक्स, कोई और बुक्स आपको पढ़नी है वो आप पढ़ सकते हैं. इफ यू आर अ बुक लवर देन यू शुड गो फॉर इट. बहुत सारी तरीके की बुक्स हैं. मैंने अभी तक क्रिएटिव कॉर्नर पे सिर्फ एंटरटेनर्स कॉर्नर को ही टच करा है बिकॉज आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. तो मैंने वहां पे टच किया है, मैंने बुक्स का देखा है और मैंने भी कुछ चीजें, कुछ टिप्स ली हैं जहाँ पे मैं सीख रही हूँ कि हाउ टू डू ब्लॉगिंग बिकॉज आई एम अ वेरी फूडी पर्सन. आई लव फूड. तो मुझे उसके बारे में लिखना भी अगर मुझे मौका मिले तो व्हाई नॉट, है ना. Okay. So in this plus subscription, what are you going to get? Daily life classes where you are entering into discussions with your educators. You can ask your doubts. You can also answer polls. All while the class is going. Correct. Then after that, we also provide you a structured course. This structured course is basically a combination of your exam subject when your the terms of your exam are very well covered within the time, and then revisions are taking in at such a stage जहाँ पे आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे. उसके बाद यू डोंट हैव टू थिंक कि भैया वापस से पढ़ना है, इतना ये है, इतना स्ट्रेस है. वो सब चीजें आपको आएंगी ही नहीं. ठीक है. Then live tests and quizzes helps you to evaluate your preparation with our regular mock test and quizzes and get detailed analysis on your performance. You can get your detailed performance, that is also available. Okay. Then we also provide you unlimited access. Suppose you are unable to come to the class, come for the online class. So आपसे क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्लास तो मिस करनी होती नहीं है क्योंकि उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहे होते हैं. तब आप क्या कर सकते हो, आप बस अपने ऐसे फ्री टाइम पे हो, चलो अन अकेडमी खोला, देखा कौन सी मैम ने क्या पढ़ाया, कौन से सर ने क्या पढ़ाया, पढ़ा 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 पढ़ा, फटाफट फटाफट क्विक 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 करके बस खत्म क्लास. तो इससे आपकी नॉलेज भी वेस्ट नहीं हुई, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और आपको नॉलेज भी मिल गया. सो दिस ऑल प्लस बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग इज जस्ट एट ₹800. You just have to pay ₹800. ठीक है ना, per month. So it is basically starting from ₹800 per month. Then we also cover your comprehensive syllabus. So yes, Unacademy provides you a comprehensive syllabus which covers all of your 5 subjects: math, science, English, social science, Hindi, like that. Correct. So basically, what happens is that suppose you are learning just science, you have just joined for science. उसमें भी साइंस के लिए भी आपको 3 से 4 से भी ज्यादा, there we give you multiple educators. There are number of educators who takes science subject इन दैट कैटेगरी. करेक्ट. तो और भी हमारे पास एसएसटी के भी हैं, हिंदी के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं. तो यू आर नॉट ओनली अटेंडिंग वन एजुकेटर्स क्लास, यू आर गेटिंग द मल्टीपल बैचेस ऑल्सो, है ना. So for all these benefits, what do you have to do? You just have to download the Unacademy Learning app, install it, click on the CBSE Class 8 plus sign and get the subscription. If you have any kind of queries related to the subscription, then you can feel free, you are free to chat with us. Correct. This subscription plan is for class 6 to 12, where the best plan that we have is for class 12, for 12 months and for 24 months, because the per month is very economical, very cheap. It is not that expensive. This 36 month is also a good plan. Okay, this 36 months is also a very good plan because here the per month is just coming ₹800. So we also provide you an EMI availability is also there on 6 months and above subscription plans. If you see that these plans are very expensive, then what you can do? क्या करें, अगर इतना महंगा हमें लग रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? वी शुड अप्लाई सम कूपन कोड्स, राइट. तो ये कूपन कोड आपको 10% देगा. पर कौन सी कूपन कोड? ये जो मेरी वाली कूपन कोड है विच इज कुमारी, KUMARI. सो ये जो कुमारी है ये आपको जरूर 10% कम दिलवा देगी, है ना. सो यू कैन यूज माई कोड विच इज कुमारी एंड गेट 10% डिस्काउंट. Then please, then after that you
अप्लाई माई कोड, गेट 10% ऑफ एंड देन गुड टू गो। ठीक है ना, 24 मंथ्स के लिए आपने ले लिया, हो गया काम खत्म। देन आपको जाना है, एक और ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये क्यों, ये ऑप्शनल है, डेफिनेटली आपके ऊपर है। आप टेलीग्राम ऐप इसीलिए यूज करो या इसको आप इसलिए डाउनलोड करो बिकॉज ये आपको ये बताएगी कि कब कौन सी एजुकेटर क्लास ले रही हैं या ले रहे हैं, आपको कितने मल्टीपल बैचेस मिलने वाले हैं, वो एक दिन में वो और कितने पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताता है, ये सब आपको टेलीग्राम ऐप बताता है। बिकॉज यहाँ पे आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आके आपको नोटिफाई करते हैं कि वी हैव अ क्लास नाउ, वी हैव अ मेंटी नाउ, सो दिस इज आवर ज्वाइनिंग लिंक, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यस, लेट्स कम टू द टॉपिक वाटर। Water is very very important for us. We have 70% of water coverage on the surface of earth, but can we use this full 70%? इतना है हमारे पास पानी, इतना पानी है, लेकिन we cannot use it, we cannot use it to the fullest extent. There are certain reasons why we cannot use it. सबसे पहला, it is very very saline in nature, very very salty, so आप उसको consume नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन दूसरा, इट इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज वो आपको बहुत दूर दूर के रीजन्स में है, बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में है, तो वहां पे जाना और वहां से पानी लाना is very very difficult. So water is definitely an important renewable resource. That means it can be renewed, it can be renewed. That means it is a replenishable resource which can be renewed within no time. But it doesn't matter that it is a renewable resource or not, but we should not exploit that resource, because even if the water coverage is 3/4 surface of the earth covered in water, which is basically 70%. 70% is covered in water, but still we cannot use the full 70%. The reason is that fresh water is just accounted for 2.7%, that is fit for human consumption. ठीक है, 2.7%, 70% में से you cannot even use 3% water because that 2.7% is not completely accessible. हम वहां पे तक जा ही नहीं सकते. That was I was giving the example for. But still, because the earth has been covered mostly, more than half, 70% is being covered in water, so that is why we can aptly say, we can aptly called the earth as the water planet, or we can call it as a blue planet. अगर आप आउटर आउटर अर्थ से देखोगे तो आपको अर्थ ब्लू ही दिखेगा. द कलर ऑफ द अर्थ इज ब्लू बिकॉज पूरे पानी से ही तो है. लैंड तो सिर्फ 30% है, करेक्ट, जो हमने पहले पढ़ा कि लैंड इज जस्ट 30%, 70% इज वाटर. सो दिस 70% में से सिर्फ आप 2.7% कैन इज अकाउंटेड फॉर वाटर फिटनेस, जो पानी आपके लिए सही है. बट स्टिल यू कैन नॉट कंज्यूम इट, यू कैन नॉट exploit that water full 2.7% because कुछ areas are not accessible, they are not fit for the humans to go. ठीक है, इट इज नॉट, मतलब अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो ये पूरे 2.7% को यूज कर सकती है. तो this 70% of it occurs in ice sheets and glaciers in the Antarctica, Greenland and mountain regions. So it's 2.7 में से 70% is under Antarctica, Greenland and mountain regions. इस वजह से हम इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना, हम अब कभी कभी सुनते हैं ना कि ग्लेशियर पिघल रहा है, आइस शीट पिघल रही है. तो दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑल्सो, बिकॉज जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना जल्दी ये पानी जमीन पे आ जाएगा. पर ये पानी में क्या है, नमी बहुत है, यानी कि इसमें नमक बहुत है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते. So let me just a very brief introduction about water cycle, कि water cycle होता क्या है, कैसे चलता है. Water cycle is very very important for us to understand कि पानी, हम बोलते तो हैं कि पानी रिसाइकेबल है या उसको आप रीयूज कर सकते हो. इसका मतलब क्या है कि पानी को ना ही आप ऐड कर सकते हो ना ही आप घटा सकते हो, ना नीदर यू कैन ऐड इट नॉर यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, बिकॉज so basically its total volume is constant. You cannot add or you cannot subtract because it goes in a circular flow. ये एक सर्कुलर फ्लो में जाता है, जो भी हम कंज्यूम भी कर रहे हैं वो भी हमसे निकल के इन द फॉर्म ऑफ
sweat, in the form of water, it comes out. Correct? So as you can see that it is in a constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This is already, I hope you know that this is called the water cycle. I'll repeat once more that suppose आपकी बारिश हुई, आपका क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, बारिश आई, आपने वो पानी आपके माउंटेन से होकर इट इज कमिंग डाउन टू दी ग्राउंड वाटर, सरफेस रन ऑफ हुआ, देन वो लेक तक पहुंचा, लेक में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द सन, वो इवेपोरेट होके वापस ही कंडेंसेशन होकर चला गया क्लाउड्स में. तो दिस इज बेसिकली कमिंग इन अ रेगुलर फ्लो. दिस फ्लो इज ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस. तो जैसे ना वो नहीं होता कि गर्मी के बाद पहली बारिश बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस वाटर साइकिल, जो सारी जो गर्मी है, जो सारी जो ह्यूमस है, वो सारी ये जो बारिशें हैं ये सब अपने साथ लेके उड़ा के लेके चले जाते हैं. ठीक है ना? तो दैट इज हाउ द वाटर इज बीइंग रिटर्न टू दी water resource. Correct? Okay. Second. So yes, uh, next thing we know that humans, they use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. ऐसा नहीं है कि we just use water for cooking or for taking bath or for cleaning, but we also use water for multiple purposes. For example, agriculture is there, industries is there, or sometimes we use these resources for generating electricity also. This topic is going to be in your third chapter of your ज्योग्राफी, जहाँ पे हम मिनरल रिसोर्सेज एंड पावर एनर्जी में देखेंगे कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो यूजिंग वाटर. ठीक है ना? So yes, and this electricity can be used in the form of like पानी से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, by making dams and by making reservoirs, जहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं in the form of generators and turbines. Correct? So what are the major factors that are leading to water shortage? What would be the problem? क्या प्रॉब्लम है कि ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से पानी कम पड़ जाता है? क्योंकि हमने तो बोला वाटर is on a continuous basis, it comes and it goes, so it basically it doesn't stay. तो क्यों पानी का शॉर्टेज क्यों हो जाता है? तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उतना ज्यादा कंजम्पशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, the population of a country is increasing, तो cooking, then you say bathing, cleaning houses, इंडस्ट्रीज भी उतने ही होंगे, एग्रीकल्चर भी उतना ही होगा. तो मतलब क्या है, बेसिकली इट इज डेफिनेटली increasing the shortage of the water. Correct? Then when there is a rise in demand for food and cash crops. Food crops are basically those crops like rice, wheat, जो भी आप directly consume करते हो, so those are called food crops. And production of jute, cotton, ग्राउंड नट, ये जो ग्राउंड नट्स और ये जो जो मैंने अभी आपको काउंट कराया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सबको ना बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है. दे कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर. ठीक है ना? सो जितने ज्यादा इन सब की डिमांड होगी, ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो बाकी फूड एंड कैश क्रॉप्स की भी डिमांड हाई होगी. तो एज अ रिजल्ट योर वाटर इज गोइंग टू गेट शॉर्ट. है ना? देन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. जितना ज्यादा आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप विलेज से अर्बनाइज होने की कोशिश करेंगे या सिटी बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा पानी की कमी होगी, पानी की किल्लत बढ़ेगी. नेक्स्ट, जितना लोग का स्टैंडर्ड बढ़ता है, देखा है कुछ एडवर्टीजमेंट में ऐसा है कि पानी का मतलब फवारा खोल दिया है, यू द शावर इज ऑन एंड बहुत तरीके से यू कैन यूज वाटर. देर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली टेक्स 1 hour ऑफ बेदिंग. है ना? है, बहुत लोग हैं. तो उसमें क्या होता है, वो 1 hour ऑफ बेदिंग में क्या होता है, दे आर बेसिकली वेस्टिंग वाटर ना. ऐसा 5 मिनट 10 मिनट में यू कैन टेक बाथ, मोस्टली मैक्सिमम विल बी हाफ एन आवर. 1 hour में आप कितना ही पानी वेस्ट करोगे. एंड दे आर नॉट क्लीनिंग क्लोथ्स. नो, दे आर नॉट क्लीनिंग क्लोथ्स. जैसे कि अब देखो, वॉशिंग मशीन्स भी यूज है ना. तो वॉशिंग मशीन्स जब हम यूज करते हैं तो उसमें पानी ना ज्यादा लगता है.
ठीक है, एक बार 3 बार सफा करो या 3 बार उसको रिंस करो, फिर स्पिन करो, सो दे इट टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो जितना ज़्यादा लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, उतना ज़्यादा पानी का किल्लत भी बढ़ते जा रहा है, करेक्ट? देन so what will be the some methods of water conservation? वाटर कंजर्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं या वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट इज treatment of untreated or partially treated sewage. So any kind of dirt और किसी तरीके की अगर जो गंदगी है, उसको जो हम बिना ट्रीट किए, बिना उसमें कुछ केमिकल वगैरह यूज करे, उसको मतलब बिना उसको प्योरीफाई किए जब हम उसको पानी में छोड़ देते हैं, देन इट एक्सप्लॉइट्स वाटर, या वो पानी को डिटोरिएट करता है। ठीक है, सो व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम इट्स ट्रीटमेंट फर्स्ट। सो सबसे पहले क्या है कि वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग दैट अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड सीवेज। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल केमिकल्स शुड नॉट बी वॉश्ड अवे डायरेक्टली, देर हैज टू बी अ वे, क्योंकि ना एग्रीकल्चर में वी यूज सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सो व्हेन वाटर रन ऑफ इज देयर, जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, तो ये जो पानी जाके ये जो एग्रीकल्चरल पानी होता है, ये जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं, ये सारे जब पानी में जाके मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे aquatic ecosystem gets affected, correct? So we should start taking care of agricultural chemicals. So that is why I say that we should use manure, we should use organic manure, because it is not only good for soil but it is also good for the water, क्योंकि अगर वो organic है तो वो वाटर सप्लाई या वाटर एक्वाटिक एनिमल्स को अफेक्ट नहीं करेगी। Then industrial effluents, like they use excessive petroleum, excessive ड्राई, सॉरी नॉट ड्राई वाटर, वार्म वाटर है, वो हॉट वाटर भी बहुत यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों को उनको ट्रीट करना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज do the treatment for this industrial effluents. They should not be allowed to just release the water in directly, the warm water directly to the oceans. They should not be allowed. Yeah, so one thing one we can do is by treating the sewage, we can also treat the agricultural chemicals, and we can also treat the industrial effluents. Correct. Then after that, afforestation required to slow surface runoff and renew underground water. So yes, afforestation, that means plantation of new plants in those areas where plantation was never taken into account. वहाँ पे जब आप plantation करते हो, then that results to definitely slow down of surface runoff, यानी कि surface की जो पानी है उसको वो स्लो कर देती है, वो एक साथ में सारे गंदे चीजों को अपने साथ लेके बाहर नहीं ले जाती है ना। एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिन्यूइंग अंडरग्राउंड वाटर। देर आर सर्टेन अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, जो हमारे लैंड के एकदम बहुत नीचे पानी रहता है ना, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को भी एफॉरेस्टेशन, बिकॉज पानी रूट से नीचे चला जाता है। व्हेन वी प्लांट सॉरी ट्रीज या plantations, when we do, then because of their roots the water goes in the underground, है ना। so that is also one of the method to conserve water. Apart from that, we can do also water harvesting, that means collection of water we can also do. This is a collection of water, है ना, ये collection of water है जहाँ पे what you see that people are collecting the rainwater, they are collecting the rainwater in some tanks, they make some tanks। पहले तो ये वो क्या करते हैं, फर्स्ट जो रेन होता है उसके पानी को वो नहीं करते हैं, बिकॉज वो गंदा होता है। जब पानी थोड़ा रेगुलर, मतलब जब बारिशें थोड़ी ज्यादा होने लगती हैं, देन दे स्टार्ट collecting those waters. They had actually made certain tanks where the water can be harvested, can be stored. ठीक है, then canals that we use for agriculture can be properly lined up. इसमें उसमें कोई लूप होल्स ना हो कि मतलब एकदम पानी बस एक्सेसिव बहाया जा रहा है, दैट वी शुड सी वी इसका मतलब क्या है, जब हम प्लांटेशन करते हैं, जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो वी मेक सर्टेन कैनाल्स, है ना, जिसके थ्रू पानी ऐसे ऐसे करके कहीं यहाँ इस लाइन में भी चला जा रहा है, इस लाइन में भी चला जा रहा है, इस लाइन में भी चला जा रहा है, उस लाइन में भी चला जा रहा है। तो ये जो कैनल्स हैं, इनमें एक प्रॉपर लाइनिंग जरूरत है।
ऐसा नहीं हो कि बस एक ही तरफ ज्यादा पानी आ रहा है और एक तरफ कुछ पानी ही नहीं जा रहा, तो वो एक प्रॉपर वेस्ट है। हमें ये देखना चाहिए कि कैनल्स में छेद है या नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ होल्स, या अगर वो होल्स हैं तो वो किस पर्पज से है, क्या वो इरिगेशन के पर्पज से है या नहीं। अगर वो इरिगेशन के पर्पज से देन तो इट्स फाइन, बट अगर वो वेस्ट हो रहा है देन वी शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि वो पानी वेस्ट ना हो, ठीक है ना। Then for watering the plants we can use sprinklers rather to use pipes और बाल्टी भर भर के पानी डालना प्लांट्स में। वी कैन डू व्हाट, वी कैन यूज स्प्रिंकलर्स, बिकॉज स्प्रिंकलर्स से पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपको दिखेगा भी कि वो पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड सो द प्लांट्स कैन ऑल्सो टेक इट इनटू अकाउंट। मतलब वो भी अपने पास उतने ही पानी रखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा किया, आगे बढ़ गए, थोड़ा थोड़ा किया, तो इससे पानी वेस्ट नहीं होता है। देन वी कैन ऑल्सो डू व्हाट, वी कैन डू ड्रिप इरिगेशन, या इसको कहते हैं हम ट्रिकल इरिगेशन। ये ट्रिकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली रेन वाटर को पहला फर्स्ट रेन वाटर को यू डोंट स्टोर, यू डोंट कीप इट, बट दूसरा क्या होता है जैसे पानी हो गया वो आपके छत के रूफ टॉप से गुजरते हुए आप पाइप बनाते हैं, ठीक है, यू मेक अ पाइप बिलो योर ग्राउंड एंड वहां पे आप पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, एक थोड़ी सी दूर पे आप अपने पानी को स्टोर करते हैं एंड वहां से पानी एक एक और पंपर आप यहाँ यूज करते हैं और एक लाइन ऊपर जाती है जो आपके प्लांटेशन के बीचों बीच निकलती है, और वहां पे ना आपने टैप खोल दिया तो वो पानी अपने आप वो उड़ते हुए ऐसे ट्रिकल करते हुए आती है या ऐसे ड्रिपिंग करते हुए जाती है, so it looks beautiful also, and that way you can save water, you can conserve water, so you each drop should be saved, है ना, बूंद बूंद से बनता है सागर, तो we should save each drop. Next thing that we have in the line is your natural vegetation. Natural vegetation होता क्या है, this नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर, है ना, इट ओनली एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। Oh God, yeah. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry for this. Hello, welcome back. सो यस, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। ये यानी कि नेचुरली जो मतलब नॉन लिविंग, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर मीन्स व्हेन यू सी इट एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, व्हेन यू सी एयर, लैंड, water and sorry, where is it, air, water, soil and a combination of air, water and soil is called बायोस्फीयर। तो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं या वाइल्ड लाइफ है, इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मैंने क्या बोला कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर विच इज कॉल्ड एज द लैंड, है ना, सॉइल का मतलब लैंड, लिथोस्फीयर इज अ इट मीन्स लैंड, लैंड या सॉइल कह लो, water will be your hydrosphere and air will be your atmosphere, so a combination of a narrow zone of all these three will be called as biosphere. So in the biosphere लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे कि आप देख लो ये एक छोटा सा खरगोश दिख रहा है या बनी है, ये जो बनी है दीज इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, सो दिस बनी और दिस ट्री
this tree are being interrelated. Living beings are being interrelated and interdependent on each other for survival. So they are very very interrelated. We cannot take just we cannot be just us. हम लोग ऐसा अगर सोचे कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही रहेंगे या लिविंग बींग्स ही रहेंगे इन दी एनवायरमेंट, तो वो नहीं हो सकता है, बिकॉज दे आर इक्वली इंटरडिपेंडेंट. तो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम. तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. करेक्ट. देन नेचुरल वेजिटेशन में हम देखेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज. तो प्लांट्स दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर. टिम्बर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्री. ठीक है. timber, it provides us shelter to not only animals but to certain humans also, है ना. वो जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये प्लांट्स शेल्टर भी बनते हैं. दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन. डेफिनेटली वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. हमें क्रॉप्स बनाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए प्लांट्स चाहिए. सो दे हेल्प एंड दिस प्लांट्स दे बेसिकली डू व्हाट? दे प्रोटेक्ट दी सॉइल, है ना. क्योंकि दे हैव रूट्स, सो दे कैन कैप्चर द मॉइस्चर, दे कैन कैप्चर द मिनरल्स इन देयर रूट्स. सो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. देन दे ऑल्सो एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स. एज वी हैव सीन कि वो शेल्टर बेल्ट्स की तरह भी काम करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जब वो शेल्टर बेल्ट्स की तरह होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े ट्रीज आपने रोज एंड कॉलम्स में लगा लिए, तो उससे क्या होता है कि विंड की अवेलेबिलिटी या विंड कितना जोर से है वो आप चेक कर पाते हो. सो बेसिकली प्लांट्स दे ऑल्सो हेल्प्स इन एक्टिंग एज अ शेल्टर बेल्ट. दे हेल्प्स एज अ बैरियर, है ना, फॉर कंट्रोलिंग दी सॉइल इरोजन, है ना. सॉइल कंजर्वेशन का इट वाज वन ऑफ द मेथड. करेक्ट. देन इट गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो तो है ही. वो हमें प्लांट्स, हमें जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमें क्या देता है? फ्रूट्स भी देता है, वेजिटेबल्स भी देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, है ना. क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर तक जाएगा कैसे? क्योंकि हमने तो खुदाई कर नहीं रखी है. जो भी बारिश आ रही है वो हम कंट्रोल कैसे करेंगे, या उसे हम वापस से जमीन में कैसे भेजेंगे? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्लांट्स एंड दी ट्रीज. जितने ज्यादा आप प्लांट्स या ट्रीज लगाओगे उतना ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर चैनलाइज होता है. इट ऑल्सो गिव्स अस पेपर. इट ऑल्सो गिव्स अस मेडिसिन एंड सो मच वी कैन नॉट एक्सपेक्ट. मतलब हम फिर भी इतने बेवकूफ हैं कि हम प्लांट्स को या ट्रीज को कट डाउन करते हैं. बट पहले ना हम बहुत ज्यादा कट डाउन कर रहे थे. देन द गवर्नमेंट, द World United Nations, sorry, not World United Nations, World Organizations, they had said कि आपने अगर प्लांट नहीं लगाया, if you are not planting new trees, then there will be a situation when the global warming will touch at its peak, और वहां पे nobody can survive. ठीक है ना. एक ये because of this because of plants and trees there is a atmosphere. वहां पे एटमॉस्फेयर एक इक्वल लेवल पे रहता है, तो वो टेम्परेचर को कट डाउन करने के लिए प्लांट्स वी डेफिनेटली नीड. ठीक है ना. सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स नेचुरल वेजिटेशन, ऑल्सो इंक्लूड्स योर वाइल्ड लाइफ लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एक्वाटिक लाइफ फॉर्म. दे प्रोवाइड अस व्हाट? जैसे मैंने तो अभी बता दिया कि प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. वाइल्ड लाइफ हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं. दिस इंक्लूड्स बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग जब देखते हैं ना, देर आर सो मेनी पीपल हु loves pets, who loves animals, birds, insects and aquatic life forms. They are very very strict. होना भी चाहिए because they have the right to life as well, just like us. So they also provide us, with milk, है ना. काउस हो गए, बफेलोज हो गए, गोट हो गए, ये हमें मिल्क देती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस मीट, हाइड्स एंड वुल. yes, hides and wool be they provide us. Can you see those, how beautiful they look? See, this is a bee, this is a kangaroo, this is a vulture. So can you see these people are, these particular section is very beautiful, है ना. ये हमें कुछ कर ही नहीं रहे तो हम इनको क्यों मार देते हैं या इनको क्यों खराब करते हैं? वी शुड नॉट डू इट. Certain insects are such that they help in the pollination of flowers.
है ना। बटरफ्लाइज दे ऑल्सो आर वेरी वेरी हेल्पफुल। वो लोग क्या करते हैं, वो फ्लावर्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, दे हेल्प्स इन पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स। इंसेक्ट्स लाइक बीज दे प्रोवाइड अस हनी। अगर हमारे पास बी नहीं होता तो शायद हमारे पास हनी नहीं होता, क्योंकि हनी हम खुद एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। Then we also have the vultures. Suppose take for example vultures. They act as decomposers in ecosystem. That means the dead, they eat the dead meat, the dead animals जो हम लोग कहीं हम देख नहीं सकते थे, तो दे एक्चुअली वर्क एज अ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है पता है, जैसे आप ना जब अपने डस्टबिन फेंकते हैं या गार्बेज थ्रो करते हैं, तो वो सारी गार्बेजेस को ना वो रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको पूरे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वो खत्म नहीं होता, दे नीड टू बी डिकम्पोज, है ना। करेक्ट। सो दे हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग दी, दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर इन दी इकोसिस्टम। करेक्ट। गिव मी। नेक्स्ट, मेजर vegetation types. Major vegetation types we have forest, we have grasslands, we have scrubs, we have tundra. So basically when we talk about the major vegetation types, we will always have four types. One is forest, grassland, scrubs and tundra. अभी forest होते क्या है, these are very very closely associated with heavy rainfall like mountains. So forests are basically places where you can see trees, long trees. Those are very mountains, as you can see. These are very very closely related with the rainfall. Here you are going to, because जितने ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, जितने ज्यादा माउंटेन्स होते हैं, उतने ज्यादा वहां पे बारिश होती है। जैसे कि आप देखो राजस्थान तरफ हो गया, या अहमदाबाद तरफ, या आप कह लो गुजरात साइड, ये जो सारी नॉर्थ साइड्स हैं, इनमें ना आपको ज्यादा बारिश नहीं मिलेगा। but when you go to the northeastern sides or some hilly areas, then you will see कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है because of the presence of the forest. Then comes your grassland. Grasslands क्या होते हैं, sorry, grasslands are associated, okay, one second, हाँ, battery. ग्रासलैंड्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ। लेट मी चार्ज माय लैपटॉप। तो यस, ग्रासलैंड्स आर एसोसिएटेड विथ मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि यहाँ पे आपको घासें बहुत दिखेंगी, और यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, ना ही ज्यादा ना ही कम। सो इट इज काइंड ऑफ एन ओके ओके सिचुएशन। देन कम्स योर स्क्रब्स, दीज आर एसोसिएटेड विथ लो रेनफॉल। यहाँ पे आपको रेनफॉल बहुत कम दिखेगा, इतना ज्यादा आपको रेनफॉल नहीं दिखता, यानी कि ये आपके वो एरियाज है जो थोड़े ज्यादा गर्म वाले एरियाज होंगे, है ना। देन वी हैव टुंड्रा वेजिटेशन, वेयर इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ कोल्ड पोलार रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत दूर दूर तक प्लांटेशन, बहुत कम प्लांटेशन बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे तो फिर भी आपको स्क्रब्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रासलैंड दिख रहे हैं, यहाँ तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको प्लांटेशन बिल्कुल ही कम दिखेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन का मतलब एवरग्रीन, कभी भी इनके इनके लीव्स हमेशा ही आपको दिखेंगे, दीज आर ऑलवेज ग्रीन। पर डेसिडियस फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट जो कभी सूखे हो जाते हैं, कभी नहीं रहते, कभी एकदम ग्रीन होते हैं। ठीक है, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट those forests that do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. हमारे जितने हमारे 5 से 6 सीजन्स होते हैं ऑफ द ईयर, उनमें ये कभी भी अपनी लीव्स शेड नहीं करते। बट डेसिडियस फॉरेस्ट, दे लीव शेड्स इन पर्टिकुलर रीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो दे शेड देयर लीव्स, दे उनके लीव्स सारे झड़ जाते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे, स्पेशली विंटर्स में आप ज्यादा देखोगे कि लीव्स झड़ गए हैं। These leaves are being shedded in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. So transpiration is a process through which loss of moisture can be controlled. ठीक है,
So let's see what are the threats to natural vegetation. We have seen that what were the threats to uh, we have seen that what are the threats to the land, what are the threats to the water. So soil also we have seen that it is our responsibility to know what are the threats to the natural vegetation. So this has been broadly categorized into two: natural and human made factors. Natural factors may you will see that their first threat that we have to natural vegetation is changes in climate. जितना ज्यादा climatic change रहेगा, जितना ज्यादा ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड, ज्यादा बारिश, that always affects the natural vegetation. The plants, they are used to, or they get adapted to their usual vegetation. They get to their usual vegetation, but sorry, usual growing of the vegetation, but ओके, अगर जितना ज्यादा गर्मी होता है उतना ज्यादा ये वेजिटेशन अफेक्ट होता है. देन वी हैव सीन दैट सुनामी इज वन काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी दैट अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन. सुनामी क्या होता है? इट इज a whirlpool a whirlpool of no, that is called cyclone. Tsunami is like जब समुद्र का पानी पूरा आके एक शहर को बर्बाद कर देता है. जब एक शहर बर्बाद होता है तो इसका मतलब उसके साथ साथ हमारे वहां का नेचुरल वेजिटेशन भी बर्बाद होता है. देर आर सम मोर फैक्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ऑल आर ऑल्सो देयर. देन वी नो दैट लैंडस्लाइड जब होता है तो वो एक पूरा एक माउंटेन एरियाज में वो क्या होता है, जब वो पूरी स्लिप ऑफ स्टीपर स्लोप से वो सारी जो मिट्टी है या सारी जो रॉक्स है वो सारी हट के नीचे आ जाती है, टूट के नीचे आ जाती है, तो उससे भी नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज योर soil erosion. So soil erosion is one of the factors that has affected the natural vegetation because of the removal of the upper layer of the top layer of the soil. The quality of the natural vegetation has gone down. जैसे पहले की सब्जियां टेस्टी आती थी, क्या अभी भी आती हैं? वी डोंट नो, बिकॉज soil is being eroded at a greater level. ठीक है. नेक्स्ट, मैंने ये थोड़ा सा एक ग्राफ लगता है ये थोड़ा ऊपर चला गया, बट दिस इज बेसिकली फॉर दीज टू. डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, दे डेफिनेटली अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन. दीज टू आर योर ह्यूमन मेड फैक्टर्स. ठीक है, ये हमारे ह्यूमन मेड फैक्टर्स होते हैं. डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. जो ह्यूमंस करते हैं, दे हैड टू कट डाउन ट्रीज. कभी कभी वो लोग जानबूझ के भी कर देते हैं, कभी वो लोग को जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे हैव टू मेक रोड्स, दे हैव टू मेक इंडस्ट्रीज, दे हैव टू एस्टैब्लिश ब्रिजेस, दे हैव टू कंस्ट्रक्ट डैम्स. तो उसकी वजह से दे यूज टू कट डाउन द trees. So this is one of the threat that has happened, that has been close to natural vegetation. Then we have constructional activities. Yes, humans, they always are busy in doing some construction activities like building roads, constructing roads, sorry, constructing buildings, constructing roads, then construction of industries. So all these activities actually affect the natural vegetation. वहाँ पे plants के साथ साथ animals भी बहुत affect होते हैं. When you are cutting, suppose आपको एक industry set up करनी है and you are cutting the whole area of the forest, so ultimately the natural vegetation will get affected, right? वो तो होना ही है. So so this was all the threats that is available, that is there for the natural vegetation, and we have to do like natural factors पे तो we don't have any other control. हमारा कोई control नहीं है, but और the other human factors उस पे तो हमारा control है. तो why we should then we should work for those human factors, है ना? human made factors को हमें उसको control करने की बहुत बहुत जरूरत है. So there are certain threats to the वाइल्ड लाइफ पे भी कुछ कुछ थ्रेट्स हमने देखे हैं कि हैं. सबसे पहला तो है पोचिंग. पोचिंग इज अ क्राइम. इट इज बेसिकली अ कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, nails and teeth. We have seen that the people are killing animals, they are hunting animals in order to collect their hides, their skin. basically hides क्या होता है ना, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनके skins को निकालने के लिए. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके हम स्किन्स अलग से निकालते हैं, उनको हम अलग से बेचते हैं. देन सम एनिमल्स, उनके नेल्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. टीथ, जैसे कि आपने एलिफेंट के टीथ बहुत यूजफुल है.
उसको भी मारकर, एलिफेंट्स को भी मारकर उनके भी ट्रेडिंग करी जाती है। दैट इज एन इलीगल ट्रेड, बिकॉज nobody, no organization will give you no government can give you a yes for killing animals. They are against killing of animals. हमें किसी की भी लाइफ को लेना इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, करेक्ट। Then killing for honor. There was some ullu people. There was some पर से मतलब है ही नहीं, दिमाग ही नहीं है. They were killing the animals just for fun. Just they it was like a game. हमने देखा है कि पुराने जमाने में हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, एवरीबडी दे हैड दैट टेंडेंसी की फॉर किलिंग वाज एन ऑनर. अगर मैंने आज एक टाइगर मार दिया तो मैं तो भाई शेर हो गया. अच्छा, उसको हंटिंग डाउन द एनिमल्स वाज अ प्लेजर, वाज लाइक अ गेम टू देम. तो ये पहले भी होता था, अभी भी कहीं कहीं छुप छुपा के होता है, बट होता जरूर है ना. तो उसको भी दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ. देन हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस का मतलब है कि उसकी पूरी एक प्रजाति को खत्म कर देना. उस वो जहां रहता था वहां से उसने आप, जैसे मान लो कि जंगल में राजा होता है, कभी सुना है? सॉरी, जंगल में शेर होता है. कभी आपने ये सुना है कि चिड़ियाघर में शेर होता है? नहीं, वो जंगल का राजा होता है. तो देन ही हैज टू stay in the jungle, but you are changing his environment, you are taking him from one place to another in a cage, so obviously his habitat is being lost. उसका जहाँ रहने का, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो लड़के खा के जैसे भी वो रहता है, पर उसको आप हटाकर आप कहीं और उसको रख रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका हैबिटेट लॉस होगा एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस, है ना. दे आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू सच रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज. इसी वजह से तो व्हाइट टाइगर्स ऑफ बंगाल दे हैव सीन अ वेरी मतलब एकदम ही सीवियर ड्रॉप, है ना. बिकॉज हमने देखा है कि बंगाल व्हाइट टाइगर्स दैट आर बीइंग फाउंड इन द बंगाल रीजन, उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है. फॉर इन दैट फैक्ट वी हैव ऑल्सो सेड दैट वी नीड टू सेव टाइगर्स, है ना. बहुत सारे देवर इन विच ईयर 2011 और समथिंग, there was just 4,000 के आसपास we had our 4,000 or 400 like that. We had our tigers ka strength, but now it has totally changed. Now it has totally changed. Correct. So because that was a threat because of the habitat loss. They were very losing their habitat. They didn't know what to do. कुछ तो ऐसे एनिमल्स थे जो खाना पीना भी छोड़ चुके थे, बिकॉज दे ऑलवेज हैड दैट. पहले वो हंट करते थे और खाते थे. ऐसे भी कुछ एनिमल्स थे, तो आप नहीं रख सकते हो उनको चिड़ियाघर में. तो इसीलिए दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग. Then plastic pollution. Yes, plastic pollution because of the increase in the use of plastic. और लोग क्या करते थे, they didn't plastic cannot be renewed, cannot be recycled. That is very very sure. ठीक है, अब वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका मतलब वो खत्म नहीं होता है. वो आपका हमेशा ही रहेगा. यू कैन नॉट बर्न इट. अगर आपने बर्न भी करा, वो फिर भी पूरा तरीके से खत्म नहीं होगा. सो बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ प्लास्टिक द पोल्यूशन हैज इंक्रीज. ये जो कितने हमने फोटोग्राफ्स देखे, मैं वो एक आधा लगाने की भी सोची थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. पर उसमें क्या हुआ था बेसिकली ना, द प्लास्टिक्स दे यूज्ड टू गेट एंटेंगल्ड इन द एक्वाटिक एनिमल्स माउथ. बहुत ज़्यादा देखा गया है, वेल्स पे देखा गया है, फिशेस में देखा गया, एंड दैट इज जस्ट नॉट अफेक्टिंग दोज एक्वाटिक एनिमल्स, बट देर आर सम पीपल हु आर ईटिंग देम, राइट. फिशिंग होती है, फिशिंग करते हैं लोग. फिशिंग करते हो तो इसका मतलब वो जो फिशेज़ हैं वो आप खा रहे हो. तो अगर उसमें प्लास्टिक मिला तो वो भी आपके पेट में भी तो जाएगा, तो दैट इज़ डेंजरस फॉर यू टू. तो आपको वो चीज़ भी देखनी ज़रूरी है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ. तो इसलिए हमें प्लास्टिक भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें से भी काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक का पूरी बैन कर दिया है. एंड देर आर सो मेनी कंट्रीज ऑल्सो दे डोंट यूज प्लास्टिक एट ऑल. डू यू नो दैट there was a person, I am not I'm not able to recall his name, but I have seen like these people, they go to beaches just to clean, है ना, just to clean this plastic, and they have collected tons. When I say tons, ना आप काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा उन्होंने प्लास्टिक्स कलेक्ट किए. तो इसका मतलब the people are throwing in the ocean, which is very very wrong. आप इसीलिए तो the government has said that we will not dump
You are not allowed to dump any kind of waste into the water. Rivers में भी आप नहीं कर सकते. यमुना was very very dirty, है ना, जो यमुना दिल्ली के पास है या दिल्ली में है, उसमें लोग पहले क्या करते थे, सारी गंदगी जाके जो पूजा पाठ किया जो भी था सब चीज जाके उसमें बहा देते थे, तो उसकी वजह से क्या था ना, यमुना हैड बिकेम डर्टी है. फॉर दैट फैक्ट गंगा वाज ऑल्सो डर्टी, गंगा रिवर, राइट. तो ये सारे जो रिवर्स थे इनको भी पोल्यूशन से बचाने के लिए हमने देखा है दैट गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड सो मेनी लॉज, दे हैव ब्रॉट सो मेनी लॉज इनटू द एक्शन, क्योंकि दैट इम्पैक्ट्स द वाइल्ड लाइफ, है ना. लोग जो अभी जानवर हैं, डॉग्स हैं, टर्टल्स हैं, जो भी आपके एक्वाटिक हैं या जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी जाके रिवर साइड पे पीते हैं, अगर उनके मुंह में प्लास्टिक चला जाए तो दे विल डाई, राइट, बिकॉज दे कैन नॉट कंज्यूम इट. प्लास्टिक नोबडी कैन कंज्यूम. तो इसका मतलब क्या है कि द वाइल्ड लाइफ विल हैव टू सफर. तो ये तो गलत बात है. देन वी हैव ऑल्सो सीन दैट वी व्हेन वी हैड मेड इलेक्ट्रिक फेंस, हम इलेक्ट्रिक फेंस होता है ये ना, क्या करते हैं बेसिकली, जू के साइड साइड में ना या फॉरेस्ट के साइड में हम इलेक्ट्रिक फेंस लगा देते हैं, ताकि जो जंगली जानवर है या जो वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स है वो उस रूट को क्रॉस करके पब्लिक प्लेसेस पे ना आए. पर ना क्या होता है कभी कभी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर बहुत हाई होता है, ठीक है ना, तो ये ना कभी कभी क्या होता है, ये एनिमल्स दे डोंट नो ना कि व्हाट इज द बैरियर, ये क्या है या क्या नहीं है, सो दे समहाउ they touch the electric fence and they die. So that is also a threat to wildlife. But this can be stopped if we think of something else. क्या पता हम एक बड़े बड़े ट्रीज से तो आ जाएंगे, कुछ हम और तरीका निकाल सकते हैं. प्लीज सजेस्ट सम आइडियाज कि हम इलेक्ट्रिक फेंस की जगह हम क्या यूज करें जिससे एनिमल्स मरे नहीं एंड हमारी भी प्रोटेक्शन बनी रहे, बिकॉज दे आर नॉट हैम्परिंग अस बट दे आर वाइल्ड, राइट, दे आर वाइल्ड. तो इफ दे विल सी अस तो वो तो हमें खा ही जाएंगे. तो इससे अच्छा है कि उनकी भी सुरक्षा देखी जाए और हम अपनी भी सुरक्षा करें, करेक्ट. इसमें क्या है, बिकॉज वेन वी यूज इलेक्ट्रिक फैंस सो देर वी हैव सीन सो मेनी केसेस वेयर एनिमल्स हैड डाइड, दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फैंस. बहुत, इट्स वेरी सैड स्टोरी, ठीक है. सो व्हाट आर दी how can you conserve natural vegetation and wildlife? So there were so many things that have came up in the minds of the government of India and the world also. They said that why we should make national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves. We should make all this because then only we will be able to conserve them. Because ऐसा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी हंटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपके हाथी हो गए. तो वी हैव काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम where we conserve when we where we try to protect elephants, correct. तो वो सारे क्या है, वो एक नेशनल पार्क है. यस, काजीरंगा नेशनल पार्क, करेक्ट. सो इट्स अ नेशनल पार्क. तो वो पार्क्स क्यों बनाए गए हैं, दीज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनिमल्स स्पेशली, ज्यादातर करके. देन वाई वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल्सो, बायोस्फीयर रिजर्व्स कैन ऑल्सो बी कैन हैड बीन मेड. तो आपका मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए कि कौन से कॉर्बेट नेशनल पार्क इज देयर. Then we have some more parks are there, some more wildlife sanctuaries we also have. Wildlife sanctuaries are bigger than these national parks, ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व तो इनसे भी ज्यादा, जहाँ पे आपके एनिमल्स के साथ साथ नेचुरल प्लांट्स भी रखे जाते हैं, ठीक है. Then conservation of creeks, lakes and wetlands. We have to conserve creeks, lakes and wetlands. We have to protect them. क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, जब लेक्स एंड वेटलैंड्स भी प्रोटेक्टेड होते हैं या क्रीक्स भी प्रोटेक्ट की जाती है, कंजर्व करी जाती है, प्रिजर्व करी जाती है, तो वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स को हम अपने आप ही टेक केयर करवा दे रहे हैं, ठीक है. देन देयर वर अवेयरनेस प्रोग्राम्स. वी शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स शुड बी एनकरेज टाइम एंड अगेन. इसीलिए हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू प्लांट मोर ट्रीज. उसके साथ साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ के लिए भी या एनिमल्स की तरफ भी हम कुछ एक्टिविटीज करवाएं, है ना. सो देयर इज अ साइट, an organization named as CITES. The definition is, the full form is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna.
ठीक है, it is basically an institution that it is an international institution, okay, where it is taking care of endangered species who are at the extent of getting extincted. और तो उन cities, उन flora and fauna of those flowers, those plants and those animals are being kept in according to this sites. ठीक है, तो ये साइट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं. सो इफ यू रियली लाइक माई दिस क्लास, आई होप आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो. मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करा है कि आपके इतने बड़े चैप्टर को मैं छोटा सा बना सकूं, with the compilation of important points as well. So if you really like my video, give me a hit. Do like the video, please. Share it and subscribe it so that you are not left with the interesting videos in the future. Till then, please take care. Good night. Bye bye. Take care. Merry Christmas for that, in fact. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Yeah, yes, I'm very sorry that I could not take this class live, but definitely I will be back very soon. Okay, bye bye. And don't forget to subscribe the Unacademy app. While subscribing the Unacademy app, you can use my code, which is Kumari, that is going to give you a 10% discount. Also, you can unlock the free classes for you by using my code. Thank you. This is Neha Kumari signing off. Bye bye. Take care.